on adsorption and colloids. Last time we have completed the applications of adsorption. Now here next topic is catalysis. Now a catalyst can be defined as a substance which when added to a reacting system increases the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change. इस सब्सटेंस को कहा जाएगा कैटलिस्ट एंड द प्रोसेस इज नोन एज कैटालिसिस. उर्दू में इसको कहा जाता है कैटलिस्ट को तमासी आमिल. सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है आपने तमासी आमिल. तमासी आमिल क्या करेगा? जो रिएक्शन कीमियाई तामुल की रफ्तार को बढ़ाएगा लेकिन कीमियाई अमल में खुद हिस्सा नहीं लेगा. इसको हम कैसे कहेंगे? अ सब्सटेंस विच व्हेन एडेड टू अ रिएक्टिंग सिस्टम इंक्रीजेज द रेट ऑफ अ रिएक्शन without itself undergoing any permanent chemical change. Now next है important features of solid catalyst. solid state में अगर catalyst है तो उसके important features हैं. First is catalytic activity. Now the activity of catalyst depends on the strength of chemisorption. It is chemical adsorption. The chemical bond is formed between adsorbent and adsorbate. So the activity of catalyst depends on the strength. जो उसकी मजबूती रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगा केमिसॉर्प्शन की स्ट्रेंथ के ऊपर जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी. इफ़ लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में हम देखते हैं सपोज गैस और लिक्विड are strongly adsorbed on the surface of solid catalyst, the catalyst is said to be active. Now, however, the bond formed between adsorbate and adsorbent surface should not be very strong. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इमोबिलाइज हो जाएंगे, वो हरकत नहीं कर सकेंगे फिर. नाउ D block metals such as Fe for iron, vanadium and chromium tend to be strongly active towards O2, C2H2, C2H4, COH2, CO2, N2 etc. These are strongly active. अगर ये सब reactant molecules हैं at that time these are strongly active catalyst towards these reactants. So first important feature is catalytic activity. Next है catalytic selectivity. Now some solid catalysts are selective in their action. Some solid catalysts are selective in their action. The same gaseous reactants produce different products when different catalysts are used. For example, यहाँ पे कुछ दो examples दी गई हैं. In first example, two reactions are given. It is ethylene gas. It reacts with O2 in presence of palladium and Al2O3. These are used as catalyst. The product is acetaldehyde CH3CHO. इसका नाम है acetaldehyde. Reactants are same here. In second reaction the reactants are same but the catalysts are different. यहाँ पे हमने लिया था पैलेडियम, यहाँ पे सिल्वर लिया जा रहा है. Now the product is C2H4O. This product is ethylene oxide. तो इसको कहा जाएगा catalytic selectivity. Reactants are same. When different catalysts are used, different products are formed. In second example, CO gas plus H3H2 gas. Here catalyst is nickel. The products are CH4 in gaseous state plus H2O in gaseous state. In second reaction, the reactants are CO plus H2. यहाँ पे जो रिएक्टर कैटलिस्ट है कॉपर और जिंक ऑक्साइड विथ Cr2O3. यहाँ पे हमको मिलेगा CH3OH.
कॉपर अलॉन्ग विथ, और नहीं रहेगा ये, अलॉन्ग विथ कॉपर का कॉपर को लिया जाएगा जिंक ऑक्साइड के साथ, और नहीं रहेगा यहाँ पे, कॉपर और कॉपर को लिया जाएगा जिंक ऑक्साइड के साथ और Cr2O3 के प्रेजेंस में. हियर द प्रोडक्ट इज CH3OH. सो हियर the reactants are same, the catalysts are different, and different products are formed. In second example also, the reactants are same, and by using different catalyst different products are obtained. इसको कहा जाएगा कैटालिटिक सिलेक्टिविटी. नाउ नेक्स्ट है शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बाय जियोलाइट्स. अब ये एक नया वर्ड अपने सामने आया, दैट इज जियोलाइट. व्हाट आर जियोलाइट्स? जियोलाइट्स आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स विथ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स. ये जो जियोलाइट्स हैं दीज आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स. अब एल्यूमिनोसिलिकेट है, इसमें ALOSI फ्रेमवर्क हमको मिलेगा. जियोलाइट्स है एल्यूमिनियम और ये ऑक्सीजन है, ये सिलिकॉन, ये फ्रेमवर्क हमको मिलेगा. The reaction in zeolites are dependent on the size and shape of the reactant or products and also on the pores and cavities of zeolite. ये जो zeolite है इसमें pores मिलेंगे, cavities मिलेंगी. तो यहाँ पे depend are the reactions in zeolites. जो zeolite रहेगा इसमें ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होगा और इसके सरफेस पे जब रिएक्टेंट्स एडसॉर्ब होंगे तो द रिएक्शंस इन जियोलाइट्स डिपेंड ऑन द साइज एंड शेप और ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो ऑन द पोर्स एंड कैविटीज ऑफ द जियोलाइट्स. जियोलाइट्स आर देयरफॉर शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट. यहाँ पे जो शेप और साइज रहेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का भी देखा जाएगा और जियोलाइट्स में पोर्स और कैविटीज़ को भी देखा जाएगा. नाउ इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री जियोलाइट कैटलिस्ट ZSM5 converts alcohols directly to gasoline. Gasoline means petrol by dehydration which gives a mixture of hydrocarbons. ZSM zeolite Socony mobile and it is 5 and it is used as catalyst in oil refining. ऑयल रिफाइनिंग में इस कैटलिस्ट का यूज़ होता है और विच कन्वर्ट्स अल्कोहल्स डायरेक्टली टू गैसोलीन दैट इज पेट्रोल बाय डिहाइड्रेशन विच गिव्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा अल्कोहल्स. In petroleum industry, zeolite catalyst ZSM5 converts alcohol directly to gasoline by dehydration, which gives a mixture of hydrocarbons. ये सब पेट्रोल, केरोसिन, LPG, डीजल ये सब जो रहता है इट इज़ नथिंग बट द हाइड्रोकार्बन्स. जो LPG भी हम यूज़ करते हैं ये लोअर हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं. अल्केन चैप्टर आएगा उसमें आपके सामने ये सब आ जाएगा. ये है जियोलाइट, ये जियोलाइट और यहाँ पे ये इसका जो इसके अंदर जो शेप मिलेगा इट इज़ ये पोर्स हैं, इसके अंदर कैविटीज़ मिलेंगी हमको. फिर इसके ऊपर जो रिएक्टेंट्स रहेंगे ये सब एडसॉर्ब हो जाएंगे. बहुत रफ सरफेस है, रफ मतलब खुरदुरी सरफेस ये जियोलाइट की. तो इसके ऊपर जब रिएक्टेंट्स एडसॉर्ब होंगे एट द सरफेस ऑफ दिस कैटलिस्ट द रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड दे leave the surface of this zeolite after the reaction जब रिएक्शन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. और यहाँ पे ये इसका शेप इस तरह हमको मिलेगा. इसमें पोर्स रहेंगे, कैविटीज़ रहेंगी और ये तो एग्जांपल है इसका. ये जो एग्जिस्ट होता है ये जियोलाइट, ये इसका फिगर है. नाउ यहाँ तक अपना जो चैप्टर का पहला पार्ट है दैट इज़ ओवर, दैट इज़ एडसॉर्प्शन. Second part of the chapter is colloids. Now, what are colloids? Colloids are heterogeneous mixtures with particle size in the range of 2 to 500 nanometer. Now, what is the meaning of colloids? Solution का 3 टाइप रहता है. There are 3 types of solution. True solution,
colloidal dispersion, and third type is suspension or coarse solution. In case of true solution, and this classification of solution is based on the particle size of the solute. solution अगर हम देखेंगे उसमें हमको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. जब हम कोलाइड देखेंगे इसमें भी हमको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, सोल्यूट सॉल्वेंट. अब कोलाइड में जो सोल्यूट रहेगा इसको डिस्पर्स्ड फेज कहा जाएगा, और जो सॉल्वेंट के तौर पे रहेगा वो उसको डिस्पर्शन मीडियम. ये अपनी आसानी के लिए हम याद रख सकते हैं. और जो सस्पेंशन है इसमें भी दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, दो या दो से ज़्यादा. एंड दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज़. अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन रहेगा इसमें पार्टिकल साइज़ हमको मिलेगा इन द रेंज ऑफ 0.1 to 2 नैनोमीटर. कोलाइड में जो पार्टिकल का रेंज है ये हमको मिलेगा 2 to 500 नैनोमीटर. नैनो का मतलब रहेगा 10⁻⁹. इस n की जगह हम रख देंगे 10⁻⁹, मतलब 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर. 2 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर इसमें कोलाइड्स में पार्टिकल का साइज़ रहेगा. तीसरा टाइप आता है सस्पेंशन. उसमें पार्टिकल का साइज़ रहेगा ग्रेटर देन 500 नैनोमीटर. एंड द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन आर इनविजिबल. उसको हम देख नहीं सकते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर इनविजिबल बट दे कैन बी काउंटेड. अब आप कहेंगे जिसको देख नहीं सकते उसको काउंट कैसे करेंगे, तो आगे एक अभी प्रॉपर्टी आएगी, आगे जब ये चैप्टर चलेगा उसमें ये आपको समझा दिया जाएगा. ठीक है. सो जो सॉल्यूशन का टाइप है सेकंड टाइप दैट इज़ कोलाइडल डिस्पर्शन, उसमें ये टाइप आएगा दैट इज़ कोलाइड्स. अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर. ये नेक्स्ट ईयर आपके सामने आएगा. 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है सॉल्यूशंस, तो उसमें जो मिक्सचर रहेगा वो रहेगा होमोजीनियस मिक्सचर. होमो मीन्स सेम एंड जीनियस मीन्स फेज, विच कंसिस्ट ऑफ वन फेज थ्रू आउट. ये है कोलाइड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस थ्रू आउट. हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड जीनियस मीन्स यहाँ पे हम लेंगे फेज ले सकते हैं. कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विथ पार्टिकल साइज इन द रेंज 2 to 500 नैनोमीटर. अब यहाँ पे जो नॉलेज रहती है कोलाइड की, इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मेनी यूजफुल मटेरियल्स लाइक सीमेंट, ब्रिक्स, पॉटरी, पोर्सलेन, ग्लास, इनेमल्स, ऑयल्स, टेक्सटाइल्स, फिलामेंट्स, क्रेयॉन्स. बहुत सारे यहाँ पे इसके कोलाइड के एग्जांपल्स हैं जो हम डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं. अभी एक टेबल आपके सामने आएगा, उस टेबल को आपको याद रखना रहेगा, याद करना है. उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स आर गिवन जो हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं ये. सो कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विथ पार्टिकल साइज इन द रेंज ऑफ 2 to 500 नैनोमीटर. एंड इसको कहा जाता है कोलाइडल डिस्पर्शन. दो कंपोनेंट्स इसमें रहेंगे कोलाइड्स में, एक रहेगा डिस्पर्शन मीडियम एंड सेकंड कंपोनेंट इज डिस्पर्स्ड फेज. एंड द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज आर larger than the size of the molecule and smaller than the particle which we can see with the naked eye. naked eye से जब देख सकते हैं हम जो पार्टिकल्स को, उससे कम इसका पार्टिकल का साइज रहेगा डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का. ठीक है. सो इट इज़ अबाउट द कोलाइड्स या कोलाइडल डिस्पर्शन. नाउ दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ब्लू कलर ऑफ द स्काई. जो स्काई है, आसमान का ब्लू कलर हमको दिखता है. अभी जो ब्लू कलर दिखता है आसमान का, ये पूरा टाइम नहीं दिखते रहता. जब तक रोशनी रहेगी, सुबह से लेके शाम तक, सूरज डूबने तक, उस पूरे टाइम में स्काई का कलर हमको ब्लू नहीं दिखेगा. अलग अलग कलर का स्काई हमको दिखेगा. एंड इट इज़ ड्यू टू द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर.
पहले ये देख लेते हैं। द स्काई अपीयर्स ब्लू टू अस बिकॉज माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स अलॉन्ग विथ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स dispersed in air scatter blue light which reaches our eyes। अब जो लाइट है सनलाइट, इट इज़ composed ऑफ 7 कलर्स। जिस लाइट का जो लाइट स्कैटर होता है वो हमको दिखता है, वो कलर हमको दिखता है। हाँ, जिस लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो कलर हमको दिखता है। अगर ब्लू लाइट स्कैटर हो रही है वो अपनी आँख तक आएगी और हमको क्या दिखेगा, कलर क्या दिखने लगेगा, ब्लू दिखेगा। अगर रेड लाइट का स्कैटरिंग होगी तो हमको रेड कलर दिखेगा। ये सब ऐसा है, कोई भी चीज़ कलर्ड हमको कब दिखती है। हाँ, जिस लाइट का स्कैटरिंग होगा वो कलर हमको दिखता है। ठीक है। अब अगर हम शाम के टाइम देखेंगे अलग कलर दिखेगा, दोपहर में देखेंगे हम अलग कलर दिखेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ पे पार्टिकल साइज़ का रेंज दिया हुआ है 2 to 500 नैनोमीटर। अब ये रेंज दिया है, इसका मतलब अलग इस रेंज में हमको अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स मिलेंगे। अब अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स रहेंगे तो वो अलग अलग लाइट को स्कैटर करेंगे, फिर वो हमको दिखेंगे। तो यहाँ पे एक जनरली आपको एक एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे दिया गया है ब्लू कलर ऑफ द स्काई। क्यों है ये ब्लू कलर ऑफ द स्काई? बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स अलॉन्ग विथ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स, पानी के जो छोटे छोटे कतरे हैं वो हवा में है डिस्पर्स्ड कंडीशन में, एंड दे स्कैटर ब्लू लाइट विच रीचेस आवर आइज़। ठीक है, जिस कलर के लाइट का स्कैटरिंग होगा वो कलर हमको दिखेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है ब्लड। What is blood? It is a colloidal dispersion of plasma, protein and antibodies in the water. What is blood? It is nothing but the colloidal dispersion. अब क्या क्या है, ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब ये जो ब्लड है ना, इट इज़ एट वन टाइम इट इज़ एट अ टाइम इट इज़ कोलाइडल डिस्पर्शन एंड सस्पेंशन ऑल्सो। जो सॉल्यूशन का तीसरा टाइप है, ये सस्पेंशन के तौर पे भी हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं ब्लड को, और कोलाइडल डिस्पर्शन में भी हम एग्जाम्पल के तौर पे ब्लड को ले सकते हैं। ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी है ब्लड में, जो कोलाइडल डिस्पर्शन के तौर पे लिया गया है, व्हाट इज़ इट? इट इज़ द प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज़ in the water. Now and at the same time the blood is also a suspension of blood cells and platelets in water. ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जब वाटर में लेंगे तो वो कौन सा सिस्टम बना लेगा? वो सस्पेंशन बना लेगा, सॉल्यूशन का तीसरा टाइप बना लेगा। ट्रू सॉल्यूशन नहीं है ब्लड। जो ब्लड है वो कोलाइडल डिस्पर्शन है एंड सस्पेंशन साइमल्टेनियसली। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज सॉइल। Fertile soils are colloidal in nature, where humus acts as a protective colloid. ठीक है, soil absorbs moisture and nourishing materials due to its colloidal nature. जो सॉइल रहेगा वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेगा और नरिशिंग मटेरियल को एब्सॉर्ब करेगा। क्यों एब्सॉर्ब करेगा? ड्यू टू इट्स कोलाइडल नेचर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉग, मिस्ट and rain. What is mist? What is fog? Mist is caused by small droplets of water dispersed in air. Water droplets disperse condition में रहेंगे एयर में, तो वो क्या बना लेगा? ये मिस्ट बनाएगा। What is fog? Fog is formed whenever there is temperature difference between ground and air. एयर में और ग्राउंड और एयर पे का टेम्परेचर जब डिफरेंट रहेगा तो उस वक्त क्या बन जाएगा? फॉग, कोहर जिसको कहा जाता है। नाउ अ लार्ज पोर्शन ऑफ एयर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल्स गेट्स कूल्ड बिलो इट्स ड्यू पॉइंट। द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर कंडेंसेस। जो मॉइस्चर रहेगा एयर का वो कंडेंस हो जाएगा कंडेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ दीज पार्टिकल्स विच फॉर्म फाइन ड्रॉपलेट्स which are colloidal particles and float in air
एज फॉग और मिस्ट, ठीक है। सो इट इज़ इन these are different examples of collide: blue color of the sky, blood, soil, fog, mist and rain। ये सब में क्या कि कौन सा फिनोम यहाँ पे सॉल्यूशन का कौन सा टाइप बनेगा, ये कोलाइडल डिस्पर्शन का टाइप इसके अंदर हमको मिलेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड इन 3 different ways। फर्स्ट इज classification of colloids based on physical state of dispersed phase and physical state of dispersion medium। You know there are 3 different physical states of matter: solid, liquid and gas। ये होता है physical states of matter। अब कोलाइडल डिस्पर्शन में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज है, दूसरा डिस्पर्शन मीडियम है। डिस्पर्स्ड फेज का सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स देखिए। डिस्पर्शन मीडियम का यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासेस हमको मिल रही हैं। डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड स्टेट में है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड स्टेट में। जो टाइप ऑफ कोलाइड है इट इज़ नोन एज सॉलिड सोल। इसके एग्जांपल्स हैं कलर्ड ग्लासेस, जेम स्टोन्स, पोर्सलिन, पेपर। नेक्स्ट है डिस्पर्स्ड फेज इन सॉलिड स्टेट, डिस्पर्शन मीडियम इन लिक्विड स्टेट। टाइप ऑफ कोलाइड इज सोल्स एंड जेल्स। एग्जांपल्स आर पेंट्स, सेल, फ्लूइड्स, जिलेटिन, मडी वाटर, स्टार्च सॉल्यूशन। Dispersed phase solid state, dispersion medium in gaseous state। The type of collide is aerosol। इसका एग्जाम्पल है स्मोक, डस्ट। Dispersed phase in liquid state, dispersion medium in solid state। The type of collide is gel। एग्जाम्पल्स आर चीज़, बटर, जेलीज। ये यूज़ करते हैं हम, इट इज़ नथिंग बट जेल। जेल है, जेल में क्वेश्चन कैसे आता है, राइट द फिजिकल appearance of dispersed phase and dispersion medium in gel, in aerosol, in sols and gels, in solid sol, emulsion, aerosol, solid sol, foam। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट में डिस्पर्स्ड फेज, लिक्विड स्टेट में डिस्पर्शन मीडियम। द टाइप ऑफ कोलाइड इज इमल्शन। एग्जाम्पल्स आर मिल्क, हेयर क्रीम। ठीक है। लिक्विड स्टेट में डिस्पर्स्ड फेज, गैसियस स्टेट में डिस्पर्शन मीडियम। द टाइप ऑफ कोलाइड इज एरोसोल एंड दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स। गैसियस स्टेट में डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम। सॉलिड स्टेट में ये डिस्पर्शन मीडियम है ये। द टाइप ऑफ कोलाइड इज सॉलिड सोल, दैट इज प्यूमिक स्टोन, फोम, रबर, प्लास्टर। एंड गैसियस स्टेट में डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम। इन लिक्विड स्टेट द टाइप ऑफ कोलाइड इज फोम एंड दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स। जो सॉल्यूशन है पहला टाइप, उसमें भी 9 क्लासेस हैं। ठीक है। उसमें भी ऐसे ही क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसमें 9वां टाइप हमको मिलेगा, 9th टाइप गैस मिक्स्ड विथ गैस। उसका एग्जाम्पल आता है एयर। अब इसमें वो टाइप नहीं है गैस मिक्स्ड विथ गैस, बिकॉज जब डिफरेंट गैसेस आपस में मिक्स होती हैं दे फॉर्म ऑलवेज होमोजीनियस सिस्टम एंड हियर कोलाइडल डिस्पर्शन इज हेट्रोजीनियस सिस्टम। इसलिए वहाँ पे ये जो 9वां कॉम्बिनेशन आता है गैस मिक्स्ड विथ गैस, ये यहाँ पे नहीं है। सो देयर आर 8 टाइप्स। Classification of collide based on physical state. These are colloids are classified into 8 types। ठीक है। and solutions are classified into 9 types। जब solution का चैप्टर आएगा 12th स्टैंडर्ड में उस वक्त उसको हम देख लेंगे। अब इसमें जो कॉलम्स हैं 1 2 3 4, 4 कॉलम के ऊपर 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। डिस्पर्स्ड फेज पूछ सकते हैं एग्जाम्पल दे के, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। एग्जाम्पल दे के टाइप ऑफ कोलाइड पूछ सकते हैं,
टाइप ऑफ कोलाइड दे के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, टाइप ऑफ कोलाइड देकर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का फिजिकल अपीयरेंस पूछ सकते हैं, एंड सो ऑन. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस which can be formed on this table. Now next classification is classification of colloids based on interaction or affinity of phases. फेज में हम क्या लेंगे यहाँ पे, द dispersed phase and dispersion medium. On the basis of interaction or affinity of phases, a colloidal solution is classified as lyophilic and lyophobic. Now what is the meaning of lyophilic colloid? ये lyophilic इसका दो पार्ट करते, lyo means liquid and philic means loving या attracting, ठीक है, liquid loving या solvent loving, liquid attracting. Now what is lyophilic colloid? A colloidal solution in which the particles of dispersed phase have a great affinity for the dispersion medium are lyophilic colloids. There are great affinity. dispersed phase और dispersion medium में ज़्यादा attraction रहेगा, that is known as lyophilic colloid. And if here the liquid is water, at that time this colloid is known as hydrophilic colloid. जब प्रैक्टिकल्स स्टार्ट होंगे तो उसमें अपना एक प्रिपरेशन आएगा, हाइड्रोफिलिक प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड एंड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलाइड. हाइड्रो क्यों आएगा? बिकॉज एट दैट टाइम वी विल यूज़ वाटर एज लिक्विड, ठीक है. तो लायो का मतलब होगा लिक्विड एंड फिलिक मीन्स लविंग. नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द लायोफिलिक सोल इज एवेपोरेटेड द डिस्पर्स्ड फेज सेपरेट्स. लायोफिलिक सोल इज एवेपोरेटेड मीन्स डिस्पर्शन मीडियम इज एवेपोरेटेड. जब डिस्पर्शन मीडियम एवेपोरेट हो जाएगा तो बचेगा क्या? डिस्पर्स्ड फेज. देयरफॉर वी कैन से दैट द डिस्पर्स्ड फेज सेपरेट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज if it is remixed with the medium, the soul can be formed again. When the dispersion medium is evaporated, we can say that the lyophilic colloid becomes dry. And when it is mixed with the medium, अगर डिस्पर्शन मीडियम उस ड्राई कोलाइड में हम ऐड करेंगे, उसको शेक करेंगे, तो जो सोल रहेगा लायोफिलिक कोलाइड जो रहेगा वो वापस से बन जाएगा. इट कैन बी फॉर्म्ड अगेन. लायोफिलिक कोलाइड या लायोफिलिक सोल भी इसको हम कह सकते हैं. हाइड्रोफिलिक कोलाइड या हाइड्रोफिलिक सोल. दैट इज़ वाई सच सोल्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल सोल्स, because once it is dried it can be reformed by shaking it with the dispersion medium. इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? रिवर्सिबल सोल. इसके लिए वर्ड आएगा रिवर्सिबल सोल. therefore they are stable and difficult to coagulate. coagulate मतलब to coagulate means to precipitate. precipitate का मतलब होता है रसूब. टेस्ट ट्यूब में जब देखते हैं हम कुछ सॉलिड जैसा नीचे बैठ जाता है, प्रैक्टिकल्स में देखेंगे हम, तो उसको कहा जाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है. टू प्रेसिपिटेट और टू कोएगुलेट. रिवर्सिबल सोल है, देयरफॉर दे आर स्टेबल एंड डिफ़िकल्ट टू कोएगुलेट. स्टेबल कोलाइड कौन सा रहेगा? स्टेबल सोल. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ योर आंसर विल बी लायोफिलिक सोल और लायोफिलिक कोलाइड. Next type of colloid is lyophobic colloid. Lyo means liquid, phobic means hating और repelling, repel करेगा. जो dispersed phase और dispersion medium है ये एक दूसरे को repel करेंगे. Colloidal solution in which the particles of the dispersed phase have no affinity for the dispersion medium are lyophobic colloid. और अगर वाटर यूज़ किया जाएगा एज डिस्पर्शन मीडियम एट दैट टाइम दैट कोलाइड इज़ नोन एज हाइड्रोफोबिक कोलाइड. इसका एग्जांपल आता है, फॉर एग्जांपल सिल्वर है, गोल्ड है, हाइड्रो ऑक्साइड्स लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, आयरन
hydroxide, metal sulfides. These are examples of hydrophobic colloids. Once precipitated or coagulated, they have little tendency or no tendency to revert back to the colloidal state. एक मर्तबा डिस्पर्शन मीडियम इवेपोरेट हो जाएगा तो ये वापस से हम ले नहीं सकते, रीगेन नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ लायोफोबिक. ठीक है, देयर इज लिटिल और नो एफिनिटी इन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. ठीक है, एंड लायोफिलिक कोलाइड्स कैन बी डायरेक्टली प्रिपेयर by shaking with the dispersion medium, and lyophobic colloids can be prepared indirectly. डायरेक्टली डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेस को हम शेक कर देंगे, वी विल गेट लायोफिलिक कोलाइड. In case of lyophobic colloid, we cannot prepare directly, we can prepare this colloid indirectly. 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड. ये 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है, और अगर एक एक के ऊपर आए तो 2 मार्क के लिए नोट के लिए लिखने के लिए क्वेश्चन बन सकता है. हाँ, 2 मार्क का डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन है. यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स, 4 करेक्ट पॉइंट्स. एंड लायोफिलिक कोलाइड्स, these are also known as intrinsic colloids, and lyophobic colloids are also known as extrinsic colloids. इसके लिए दूसरा वर्ड भी है, दैट इज एक्सट्रिंसिक कोलाइड, और इसके लिए दूसरा वर्ड रहेगा दैट इज इंट्रिंसिक कोलाइड. ओके. थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज classification of colloids based on molecular size. Colloids are classified into 3 types in accordance with size of their molecules. First type is multimolecular colloids. Multi means many, molecular. हाँ, ऐसा कोलाइड जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसका साइज कोलाइडल पार्टिकल के साइज के रेंज में आ जाएगा. Now, what is multimolecular colloid? In this case, the individual particles consist of an aggregate of atoms or small molecules with size less than 10⁻³ picometer. पिको पढ़ा जाएगा इसको. 1 पिको मतलब 10⁻⁻12. 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर. ठीक है, तो ये जो रहेगा ना पार्टिकल, बहुत सारे एटम्स को जब जमा होंगे बहुत सारे एटम्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दीज एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स गैदर टुगेदर, एक साथ जमा हो जाएंगे, दे फॉर्म एन एग्रीगेट. और वो जो एग्रीगेट रहेगा उसका साइज़ क्या आ जाएगा, इससे कोलाइडल पार्टिकल के साइज़ के रेंज में आएगा, जो रेंज क्या है 2 to 500 नैनोमीटर विथ साइज लेस देन 10⁻³ पिकोमीटर. इसको कहा जाएगा मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स. फॉर एग्जांपल, गोल्ड सोल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेज हैविंग सेवरल गोल्ड एटम्स. बहुत सारे गोल्ड के एटम्स मिल के मेनी सेवरल गोल्ड एटम्स गैदर टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल पार्टिकल. और उसका साइज़ कैसा रहेगा, द साइज विल बी लेस देन 10⁻³ पिकोमीटर. कोलाइडल सॉल्यूशंस इन विच पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड. अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स रहेंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हाँ, एग्रीगेट ऑफ एटम्स रहेगा, इन एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, और उसको क्या कहा जाएगा, दैट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड. स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके उन स्मॉल एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एक एग्रीगेट रहेगा. ठीक है, और वो जो एग्रीगेट रहेगा उसमें जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा दैट इज़ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उसका रेंज साइज़ कैसा रहेगा, साइज विल बी लेस देन 10⁻³ पिकोमीटर. नाउ इसमें जो एग्जांपल आती है दैट इज़
सल्फर मॉलिक्यूल, एक सल्फर मॉलिक्यूल जो रहता है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 सल्फर एटम्स। S8 मॉलिक्यूल इसको कहा जाता है, S8। इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर 8 सल्फर एटम्स आर प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट टाइप मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। मैक्रो मीन्स लार्ज, मॉलिकुलर एक सिंगल पार्टिकल रहेगा जिसका साइज रहेगा 2 to 500 नैनोमीटर, इस रेंज में पार्टिकल का साइज मिलेगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज आर सफिशिएंटली लार्ज इन साइज टू बी ऑफ कोलाइडल डायमेंशन। एक सिंगल मॉलिक्यूल का साइज इस डायमेंशन में आएगा। एग्जाम्पल्स आर स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, पॉलीथीन, नायलॉन्स, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो दीज आर different examples of macromolecular colloids. Third type is associated colloids. Associated colloids, or it is also known as micelles. It is also known as aggregated colloids. Aggregated colloid भी इसका नाम है, associated colloids और micelles और aggregated colloids. The substances behave as normal electrolytes at low concentration and associated in high concentration forming colloidal solution. कुछ सब्सटेंसेस हैं, अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट है मतलब उसमें हमको मिलेगा पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव आयंस मिल जाएंगे। और अगर उसी का हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो वो बना लेगा colloidal solution. The associated particles are called micelles. Micelle इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल सोप डिटर्जेंट। ये जो फिगर आप देख रहे हैं इट इज़ द सोप माइसेल इन वाटर। सोप माइसेल इन वाटर, जब हम सोप को वाटर में लेते हैं ना उसमें ऐसा स्फेरिकल स्फीयर जैसा सब हमको दिखता है सरफेस के ऊपर, वो जो स्फीयर रहता है दैट इज़ नोन एज माइसेल। अब वो सरफेस पे है, सरफेस केमिस्ट्री जब हम देखेंगे तो उसमें माइसेल की डिटेल में स्टडी आती है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये माइसेल के बारे में, व्हाट इज़ माइसेल। हाँ, अब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे सरफेस केमिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल में आएगा, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया जाता है। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है आपके सामने माइसेल का। नाउ सोप का ही एग्जाम्पल है यहाँ पे। सोप मॉलिक्यूल हैज़ लॉन्ग हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन कॉल्ड टेल। फिगर देखिए, टेल देखो ये पार्ट है, ये जो एरो जैसा वेवी नेचर दिख रहा है ये इट इज़ टेल, हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक है मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स हेटिंग और रिपेलिंग। ये जो पार्ट रहेगा ये वाटर से दूर रहेगा, ठीक है, इसको कहा जाएगा टेल। जो कैसा रहेगा, इट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ये पानी जहाँ रहेगा वाटर उससे दूर रहेगा ये, ठीक है। अटैच्ड टू हाइड्रोफिलिक आयोनिक ग्रुप कार्बो ऑक्सिलेट कॉल्ड हेड, ये हेड पार्ट है, ये है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग या अट्रैक्टिंग। तो ये जो पार्ट रहेगा ये वाटर के कांटेक्ट में रहेगा और इसको कहा जाएगा हेड, ये हेड है। और ये जो पार्ट है इट इज़ टेल, इट इज़ वाटर रिपेलिंग एंड इट इज़ वाटर अट्रैक्टिंग। और इधर सब इसके इर्द गिर्द देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो वाटर की तरफ कौन सा पार्ट रहेगा, हेड रहेगा, और वाटर से दूर क्या रहेगा, टेल रहेगा। इन वाटर द सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल्स कॉल्ड माइसेल्स। वाटर में ये अपने आप को अरेंज करेंगे स्फेरिकल फॉर्म में एंड इट इज़ नोन एज माइसेल। एंड इन ईच माइसेल द हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स पॉइंट टू द सेंटर। टेल जो रहेगा वो सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा विच इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड हाइड्रोफिलिक हेड्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। जो स्फीयर का सरफेस रहेगा इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर और उसको कौन फेस करेगा, हाइड्रोफिलिक हेड इसको फेस करेगा, ठीक है। और जो सोप है, सोप इट इज़ द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाइयर फैटी एसिड। इसमें हाइड्रोकार्बन चेन मिलेगा और कार्बोक्सिलेट ग्रुप मिलेगा। तो जो हाइड्रोकार्बन चेन रहेगा इट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर
और यहाँ पे जो आयोनिक ग्रुप रहेगा that is known that is hydrophilic in nature, ये ionic group. So it is about the associated colloids. It is also known as micelles, or it is also known as aggregated colloids. अब यहाँ पे ये जब माइसेल बनेगा तो यहाँ पे जो सोप डिस्पर्शन रहेगा, द सोप डिस्पर्शन इन वाटर इट इज़ स्टेबल. ठीक है, ओके. नाउ Do you know the process of micelle formation? Before that, do you know what micelles are? A cluster of particles behaving as colloidal particles is called a micelle. Now, when a soap is dissolved in water, its molecules form micelles. A soap molecule has a hydrophobic end and a hydrophilic end. Now, when present in water, soap molecules align themselves in such a manner that their hydrophobic ends are present towards the center and away from the water. But what about the hydrophilic ends? They are exposed to water. This arrangement of molecules is called a micelle.